we like HFT is a hot target. Like one thing I can think of is money. ठीक है. What more you can think of? पीपल रीच करने के लिए आपको बेसिक मैथ्स और बेसिक नॉलेज होगा, अगर सी प्लस प्लस का तो आप कर लोगे, एसटीएल का। बट यहाँ बस अगर आपको प्यूपल से ऊपर जाना है तो ये टॉपिक्स कवर करोगे तो इनफ है। एक resource that you feel is lesser known in CP world, but then like is very good, and then everybody should like definitely use it. Karan, yeah, let's start with a quick introduction, यार. मतलब like let people know about where which college you are in, from which year you are in, अभी तक क्या क्या करा है. Like let's talk about that. Okay. So, hi, my name is Karan Ralhan and I am from IIT Kharagpur. I'm in mathematics department and I have recently completed my summer internship with APT Portfolio as a quant intern. And till now, I am a candidate master in port forces and I do CP in my free time. And apart from that, I have explored different fields like machine learning and web development. So, yeah, moreover this. And moreover like सही था बाकी तो। ठीक है. Proper introduction, company or introduction, right? Nice. हाँ। Good. So, like, I think since a lot of people might not know APT portfolio, क्योंकि like generally जो लोग देख रहे होंगे मे बी इस वीडियो को, तो सबको कंपनी के बारे में नहीं पता होगा. So, I mean, हम्म। for those who don't know, it's an HFT company, right? So maybe like you can tell Karan ki like what was your quant intern at APT, like about the company, about कि क्या क्या करा, थोड़ा बहुत मतलब like about the process, about the. हम्म। So APT Portfolio is technically a HFT company which works in the market like Indian market and foreign exchanges. So वो equity and futures and options and multiple commodities वगैरह में trade करते हैं and try to make some trading logics and strategies which they can use in mid frequency trading and high frequency trading. And during my internship, I learned about the futures and options, and my main complete project was on the option theory, and I need to build up a complete idea for options and like trading strategy. So moreover, intern was around this. Okay, got it. तो आई थिंक HFT तो लाइक कॉलेजेस में सबको ही टारगेट कर रहे होते हैं, अगर अपन ऐसे सोचे कि हाँ। लाइक देर आर मल्टीपल रीजंस. तो करण, लाइक आई थिंक तुम्हारे टाइम पे भी जब तुम इंटर्न के लिए बैठे थे, तुम्हारे लिए भी सिमिलर ही था कि बहुत सारे कंपनीज तो है ही जिसको टारगेट करना है. एंड टेक्निकली फॉर यू आई थिंक एवरीथिंग वाज ओपन इन अ सेंस की CGC या। डिपार्टमेंट एंड हम्म। एवरीथिंग. सो लाइक लाइक आई थिंक आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ टॉप पीपल हु आर लाइक गुड एट CP would definitely want to explore HFTs in their intern या फिर placement में भी. So like what do you think is the reason यार? अभी like HFT is a hot target. Like one thing I can think of is money. ठीक है. What more you can think of? तो यूजुअली लाइक वर्किंग का काम मतलब जो काम रहता है अराउंड उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लाइक rather in software there is a specific kind of work you have to do a structure, but in HFT it is a open ended work. Okay, so जितना आप सोच सकते हो एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉट लाइक अ मोनोटोनस वर्क है कि लाइक आप डेली कुछ नया कर मतलब वही कर रहे हो सेम सेम जो कल किया था। इट्स लाइक रोज एक नया चैलेंज आएगा, रोज एक नई चीज बनानी है, फिर वो चीज अगर फेल हो गई तो आप और इम्प्रूव कर रहे हो। सो लाइक सेम जस्ट लाइक जैसे सीपी में होता है कि हम एक एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं, अब ना वो टीएलई दिया एमएलई दिया, अलग अलग तरह के एरर्स आ रहे हैं, अलग अलग टेस्ट केस फेल हो रहा है, उसको इम्प्रूव करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और अपनी अपने आइडियाज को लगाते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि वो देखते हो सेम चीज आप यहाँ पे मतलब ऑब्जर्व करोगे, तो वो जो फन है वो जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा थ्रू आउट योर जर्नी की लाइक करियर में आपको ये फील नहीं होगा कि कुछ बोरिंग सा चल रहा है। इट्स लाइक एवरी डे इज अ इंटरेस्टिंग डे कि कुछ नया चैलेंज है, कुछ नया वर्क है। तो हम्म. मेजरली वो एक पार्ट होता है जो सॉफ्टवेयर में मे भी डिपेंड करता है कंपनीज पे एंड आपके वर्क पे, बट यहाँ पे वो आपको एक चैलेंज एंड वो मिलेगा, थ्रिल मिलेगा वो। तो हम्म. वो एक चीज का सबसे अच्छा पार्ट होता है। बाकी अगेन सैलरी तो होती ही है, पैसे तो सबको चाहिए, हाँ, तो वही राइट. है। आई थिंक एक और चीज जो है कि मतलब लाइक जो लोग पहुंच भी रहे होते हैं सबको ही बहुत अच्छे होते हैं, मतलब दैट इज ऑल्सो अनदर. हाँ, लाइक योर पीयर इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंटेलिजेंट, मतलब लोग होते हैं जो आप मतलब सीखते बहुत हो कि आपको जो लगता है कि हाँ आप हमेशा अपने मतलब लाइक ये बोला जाता है कि आप ऐसे रूम में मत रहो जहाँ पे आप सबसे स्मार्टेस्ट हो, तो आप हमेशा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपका ग्रुप जो आपके मतलब कॉलेज में बना होगा या आप जिनसे मिले होगे वो आपके लेवल तक होंगे या आप उनके लेवल तक पहुंचते हो, बट जैसे ही आप जाके एचएफटी में जा रहे हो तो एचएफटी में जो लोग काम कर रहे हो उनको एक्सपीरियंस तो है, प्लस वो अपने टाइम के खुद ही बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग थे जिनने वो क्रैक करा है, तो आप उनसे और बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो ग्रो भी आप बहुत अच्छे लेवल पे करोगे फिर। तो वो हम्म. एक चीज होती है जो मैंने मतलब पर्सनली ऑब्जर्व करा था कि हाँ मतलब काफी है लाइक लोग बहुत काम है और बहुत काइंड वे में आपको सब समझाएंगे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, एंड देयर इज लाइक वेरी फ्रेंडली बिहेवियर, सो वो एक चीज है।
कंपनी थोड़ा का। इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होता है कि लाइक थोड़े ज्यादा ही मचाउ लोग हैं आसपास, एंड लाइक। हाँ मतलब लाइक स्टार्टिंग डेज में वो चीज हुई थी थोड़ी, मतलब वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा एक मतलब फोमो बोल सकते हो या फिर एक ऐसा फियर ही बोल सकते हो, जिससे आपको लग रहा हो कि लाइक मैं गलत जगह पे हूँ, आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। बट टाइम के साथ आपको बिलीव हो जाएगा कि इट्स अ लर्निंग टाइम, कि लाइक आप सीखोगे हर एक नई चीज में। स्टार्टिंग में एक लोड आएगा, बट टाइम के साथ जब आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको मजा आते ही जाएगा उसमें, और सपोर्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली चीज बहुत स्मूथ हो मेरे जाती है ख्याल फिर। से वही ऑनबोर्डिंग में जब लाइक अगर मेंटर अच्छे मिल जाए तो आई थिंक दैट बिकम्स रियली स्मूथ, एंड देन उसके बाद तो हाँ सीख जाते हैं। वो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि वो फर्स्ट कांटेक्ट है, तो वही आपको सब कुछ बेटर करवा पाएंगे, तो वो राइट। एक चीज है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वांट रोल था ना, तो क्वांट हाँ एंड लाइक एक जैसे सिस्टम्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जो रोल रहता है, राइट, लाइक हाँ। इन दोनों में लाइक लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट अ लिटिल बिट, बिकॉज लोग दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, दोनों के लिए ही मतलब एक तरह से सोचते हैं, तो दोनों में एक तो काम में क्या डिफरेंस है एंड प्रेप में क्या डिफरेंस है, तो मतलब think about क्वांट में मतलब क्वांट के भी डिफरेंट रोल्स हैं। लाइक क्वांट का जैसे मेरा रोल जो था, मेरा क्वांट रिसर्चर था। देयर आर क्वांट ट्रेडर्स एंड सम अदर क्वांट, लाइक डिपेंड अपॉन आप कौन से उसमें काम कर रहे हो। तो मेजरली हर कंपनी में या तो ट्रेडर होता है या रिसर्चर होता है, वेयर रिसर्चर हैज टू वर्क ऑन द स्ट्रेटेजीज, बिल्ड सम आइडियाज, जिसको एक ट्रेडर इंप्लीमेंट करेगा, अपने हिसाब से सोचेगा और उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट्स करेगा। सो दे आर सेपरेट वर्क, बट मोर ओवर हर मतलब क्वांट की फील्ड में यही रहता है। एंड सिस्टम्स का मतलब सॉफ्टवेयर एंड क्वांट का जो मतलब मेजरली डिफरेंस है, जो मतलब डिफरेंस बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके वर्क बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। हम्म। बट एक बार मतलब क्वेश्चन आप रिपीट कर दो, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया सही से। मतलब प्रेप वाइज क्या डिफरेंस है, अगर अपन ऐसे सोचे कि मेरे ख्याल से वो अच्छा तो ओ हाँ। काम में तो लाइक इंडिपेंडेंटली जो उसका लाइक हाँ हाँ। जो चीज करना रहा वो करना पड़ेगा, बट देन तो प्रेप में क्या अब डिफरेंस है? प्रेप के लिए सो मेजरली जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर को अगर अप्रोच करें कि मेरे को सॉफ्टवेयर टारगेट करना है, सो मेजरली आपको एक डिसेंट लेवल का सीपीडीएस से आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप क्या बोलते हैं सिस्टम्स लाइक उप्स वगैरह आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी सॉलिड है, स्ट्रांग है। वहीं पे अगर आप कॉन्ट साइड में जाओगे तो दे वांट कि आपका सीपी बहुत अच्छा होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को वो टेस्ट कर पाएंगे। तो आप क्योंकि हर एक दिन एक नया तरह का चैलेंज आ सकता है, सो आप रेडी होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, और डिफरेंट वेज में आपको आइडियाज होने चाहिए कि कैसे अप्रोच करते हैं, जो यूजुअली सीपी से बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो वो प्रेफर करते हैं कि आपका सीवी मतलब सीपी बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पजल सॉल्विंग, अगेन सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट का वो हिस्सा है। तो क्वांट के जो पेपर्स एंड इंटरव्यूज जो होते हैं वो मेजरली आपको टेस्ट जो कर रहे होते हैं वो यूजुअली आपकी सीपी एंड पजल स्किल्स पे कर रहे होते हैं। एंड रेस्ट अगर आपको कोर सीएस की नॉलेज है तो वो एक प्लस पॉइंट हमेशा ही रहता है कि हाँ, एक बेसिक नॉलेज तो हमेशा होनी चाहिए कोडिंग की, तो वो तो है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अगर अपन सोचे तो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी मतलब जैसे मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स यूजुअली उनके टेस्ट का पार्ट होता है, रादर देन इंटरव्यू की। इंटरव्यूज में वो पजल्स पे मेन फोकस कर रहे होते हैं। एंड प्रॉप स्टैट जो होता है वो एक्चुअली यूज हो रहा होता है। स्टैट्स तो पूरा वर्क है, मतलब आपका जो मार्केट और बाकी फाइनेंस वाली चीज होती है, स्टैट्स उसमें पूरा इंप्लीमेंट करता है। तो वो चीज एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। मतलब सीपी आपको आता है, आपके आपसे पजल सॉल्विंग हो रही है, तो आई अज्यूम कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको बेसिक नॉलेज होगा ही इतना कि आप चीजें कर पाओ। अदरवाइज आप वो दोनों बहुत जल्दी पिकअप तो नहीं कर पाओगे उतने लेवल तक। मतलब वो सीपी दिस क्या इज हुआ अ है जब काइंड कभी। ऑफ प्री रैक। राइट राइट। वो अगर एक बार सीपी किया हुआ है तो वो ऐसे दिमाग चल रहा होता है तो फटाफट आप दोनों पिकअप कर लेते हो हाँ, essentially। तो आप फिर थिंकिंग आइडिया आ जाता है, फिर आप पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, जो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स में नॉर्मली होता है, कि आप हम्म फिर जान पाते हो कि हाँ क्या आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं और क्या आपके टोटल आउटकम्स हैं। हम्म। नॉर्मल वाली चीज वैसे तो। हाँ मतलब नॉर्मल काउंटिंग वगैरह, बट हाँ वही कि वो चीज करते करते बहुत शार्प हो जाता है, मतलब फटाफट आपको समझ हाँ सकते हाँ, हो क्वेश्चन एक क्या है। शार्पनेस वाली चीज डेवलप हो जाती है टाइम के साथ, तो उसमें Got it. वो एक है। ठीक है। ठीक है, चलो फिर अब लेट्स गो बैक टू, अब तो लाइक यू हैड प्रिपेयर्ड बैक इन लास्ट समर्स एसेंशियली, राइट? उसके बाद हाँ। इंटर्न लगने के बाद तो आई थिंक थोड़ा चिल पीरियड चलता है एसेंशियली, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, है ना? हम्म देन नाउ इंटर्नशिप हो गया। बट लेट्स गो बैक एंड लेट्स थिंक अबाउट समबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, तो वो सपोज अभी लाइक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, एंड देन दे हैव देयर इंटर्नशिप्स कमिंग नेक्स्ट ईयर, लाइक दे हैव टाइम लेट्स सपोज, बट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर हम्म इट। तो लाइक व्हाट ऑल थिंग्स डिड यू प्रिपेयर, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें लाइक तुम्हें लगती है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए somebody, let's suppose they have a time but then they want to हम्म। start preparing about like एचएफटी के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, and they are suppose eligible for it, let's say। तो अब मुझे कैसे करके प्रिपेयर करना चाहिए, what essentially did you do, what all things तो did। यूजुअली अगर वो सेकेंड ईयर में है, सो इन आईआईटी केजीपी सेकेंड ईयर में एक कोर्स होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यूजुअली हर किसी का होता है कॉमनली। तो हम्म मैं बोलूंगा अगर किसी को अपना प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को अच्छा करना है तो वो कोर्स बहुत अच्छे से कर ले।
लाइक वो वेल मतलब गुड एंड इनफ है, वो कर लोगे, आपका मोर ओवर हर चीज हो चुकी होगी, आपको हर चीज पता होगी, सारे डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया होगा, सारे क्या बोलते टेक्निक्स का पता होगा कि कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका एक बेस पहले डेवलप हो चुका है सेकेंड ईयर में। एंड नाउ मूविंग कि आपको प्रेप जैसे करनी है, तो प्रेप के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। सो लाइक सबसे पहले आपको सीपी करनी पड़ेगी। लाइक डीएसए इज अ डिफरेंट थिंग, और सीपी मतलब लाइक उसका एक एडवांस वर्जन होता है हमेशा। हमने ये देखा है कि सीपी में हम उसको और थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो डीएसए से आप सॉफ्टवेयर निकाल सकते हो, बट अगर आप एचएफटी टारगेट करो तो आपको सीपी एक अच्छे लेवल तक ले जानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज एंड एडवांस टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो सेगमेंट्री, डीएसयू, और फिर उसके आगे भी जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, ऐसे हाई लेवल जो वर्ड्स, जो एकदम ऐसे बज वर्ड्स होते हैं, वो सारे आपको आने भी चाहिए पता होने के साथ साथ। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ ये आपको आता है तो आप कर सकते हो। तो प्रेप के लिए मतलब जो मैंने प्रेफर करा था, तो मैं अपने मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर से मतलब चालू किया था। तो सेकेंड ईयर के मतलब थर्ड सेम में मैंने पहली बार मतलब मेरे को एक मेरे सीनियर ने सजेस्ट करा था कि सीपी को मतलब करो, वो यूज होता है आगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते सीपी करने का बस वही था कि लाइक प्लेसमेंट और इंटर्नशिप एक अच्छी सी लग जाए। आई एम नॉट एमिंग फॉर एच एफ टी दैट टाइम, बट फिर मेरे को मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा बस पता चला था ओके, तो मैंने सीपी ऐसे रैंडमली स्टार्ट करा कॉन्टेस्ट और बाकी सब क्वेश्चन से। तो उस टाइम पे बेसिकली ग्रीडी और मैथ्स वाले क्वेश्चन करके ए एंड बी टाइप्स, बी बन गया, कभी ए बन रहा है सीएफ में, वही वही चल रहा है। एंड इन माई फोर्थ सेमेस्टर मैंने क्या बोलते हैं एजेड का कोर्स मतलब मैंने ले लिया था, बिकॉज काफी मतलब ये था और काफी अच्छे लोगों ने रिव्यूज दिए थे कि आप मतलब विवेक पढ़ाते हैं and बढ़िया है उसका काफी। तो मैंने कहा ठीक है, एंड मैं वीडियो मतलब थोड़ा बहुत देखा, मेरे को लगा कि मतलब आपका मेरे को जो पर्टिकुलरली मेरे को जो पसंद आया था वो टीचिंग का मतलब तरीका कि लाइक इट्स नॉट लाइक कि एक वीडियो देखो, इट्स इंटरेक्टिव वे, कि लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ आप क्लास में हो। तो वो चीज की वजह से जल्दी मतलब लर्निंग फेज रहा। तो एंड बाकी मतलब पूरा थर्ड ईयर मतलब मैंने, क्योंकि मेरा डुअल डिग्री था, तो मेरे लिए मतलब थर्ड ईयर के एंड में इंटर्नशिप के चालू होने वाले थे टेस्ट। तो मेरे पास पूरा थर्ड ईयर था, तो पूरे थर्ड ईयर में एंड सेकेंड ईयर के एंड में जब मेरे फ्रेंड्स के जो बीटेक वाले थे उनके चालू हुए, तो मेरे को फेस का आइडिया पड़ गया था कि आपको क्या, कुछ भी करो आपको सीपी आना चाहिए। एट दी एंड अगर आपने जो भी किया हो, आपकी जो भी मतलब आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हो, इंटर्न प्रोजेक्ट्स, जो भी आपने किया, लेकिन अगर आपको सीपी नहीं आ रहा है तो आप कंपनी का टेस्ट नहीं निकाल पा रहे, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं पा रहे हो। तो वो एक चीज यहाँ पे मतलब ऑन कैंपस काफी इफेक्ट करता है। तो मेरे को मैंने इसी पे फोकस करते हुए मैंने सीपी पे मतलब टाइम दिया। इनिशियली मेन टॉपिक्स जो थे धीरे धीरे करके पढ़ा मैंने, एंड प्रैक्टिस साइड बाय साइड प्रैक्टिस हमेशा करता रहा। जैसे मतलब जो सी एस हो गया, तो उससे मैंने डीपी एडकोडर का वो डीपी वाला कॉन्टेस्ट, वो मेजरली उसने सब कवर कर दिया, हर एक पॉसिबल वेरिएंट जो मेरे को आज तक दिखा है वो उसमें सब कुछ मिल गया था। तो मेरे को उससे मतलब मेजरली मेरी चीजें कवर होते गई। एंड टाइम के साथ जब वो रेटिंग वाली पुश होती है ना, कि आप जैसे अभी आप पहली बार पीपल बने हो, फिर आप स्पेशलिस्ट तक पहुंचे, फिर एक्सपर्ट पहुंचे हो, तो फिर वो एक मतलब किक मिलता है कि हाँ करते रहना है, कि चलो अब तो मतलब इज लाइक अ फन पार्ट, रादर देन एक इनिशियल फेज जो था कि सिर्फ एक इंटर्न या प्लेसमेंट लेना है। अब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जब आपको लगता है कि दिस इज अ गेम, इसको बस खेलते रहो और बस अपने आप को जितना ले जा सकते ले जाओ। तो वो एक चीज रहती है। तो वो बहुत फील हुई थी। तो बाय द टाइम मतलब आई थिंक बाय द टाइम थर्ड ईयर मिड तक तो आई थिंक सीएम बन हम्म। गया राइट ऑलमोस्ट आई थिंक, या थर्ड ईयर एंड। मैं सीएम बना था, समर्स में बना था, लाइक मेरे इंटर्न के एक पहले वाला, क्योंकि हुआ ये था जो सेकेंड ईयर का समर्स था उस टाइम पे मैंने मतलब ले पढ़ना चालू करा था। एंड थर्ड ईयर के टाइम पे फिर कैंपस की मतलब एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफी कुछ कर नहीं पाते थे, तो कॉन्टेस्ट वगैरह देना प्लस सेम टाइम पे लैब क्लासेस मेंटेन करना, तो उस टाइम पे थोड़ा, उस टाइम पे मेरा फोकस सीजी की साइड थोड़ा ज्यादा हो गया था। क्योंकि देयर इज अ थिंग कि अगर आपका सीजीपीए 9+ है, 9.5+ है, तो दे आर मोर चांसेस कि आपको शॉर्टलिस्ट मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सीजी, एंड प्रेफरेंस भी मिलेगा। तो मैं उस साइड भी एक मतलब वेटेज रखना था, तो सीजी मेंटेन करके रखना आई वुड से कि वो बहुत आई मीन काम की चीज है। इफ आई एम इन केजीपी एंड आई एम इन एमएनसी, मैं तो सीजीपी पे जरूर जरूर फोकस करता हूँ क्योंकि स्कोरेबिलिटी होता है काफी अच्छा खासा, एंड लाइक अच्छा हाँ सीजीपी उठा सकते हो अगर आप सही से हाँ पढ़ लेते हो। हाँ, मैं यूजुअली मतलब एमएनसी इज इजियर देन कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ईसी और सीएस सर्किटल्स में, तो सीजीपीए बनाना बहुत आसान हो जाता है। और मतलब कंपनीज वो चीज उतना फोकस नहीं करती, वो सिर्फ सीजीपीए देख रही होती हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। राइट। तो फिर मैंने मतलब मेजरली मेरा सेकेंड ईयर के समर्स में एंड थर्ड ईयर के समर्स में प्रेप करा है। तो सेकेंड ईयर के समर्स में आई मीन एक्सपर्ट, जस्ट एक्सपर्ट क्रॉस हुआ था 1650 टाइप्स। एंड इन थर्ड ईयर के समर्स में जब मैं मेन प्रेप कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा पूरा ग्राइंड वाला फेज चल रहा था कि बस हर रोज एक नया कॉन्टेस्ट आएगा, आज सीएफ कल सीसी आ जाएगा, सैटरडे आपका वो आ जाएगा, हेडकोडर आ जाएगा, एंड वो साइकिल चलती रह जाएगी।
एक बार वो सेकेंड ईयर के एंड पे वो जब एजेड कर रहे थे, फिर उसके बाद समर्स में करा हम्म। था, तो एक बार वो पूरा होके रखा था, तो फिर उसके बाद मतलब वो बस कैरी ऑन करके बस प्रैक्टिस करना था एसेंशियली। हाँ वो कैरी ऑन करना बस, लेकिन स्टार्टिंग डेज में हमेशा वो एक इश्यू आता है कि अगर आप किसी चीज को बीच में मतलब रोक देते हो और फिर आप बहुत टाइम बाद उसको वापस रीस्टार्ट करते हो, तो एक वो पॉज बन जाता है, तो वो कैचअप करने वाली चीज होती है। तो कैचअप करने के लिए बेस्ट मेरे को जो लगा था वो मेरे मेरे को नोट्स लगे थे, हम्म। जो मैंने मतलब लाइक मतलब मैंने काफी लोग से मतलब बात करी हुई थी, और मेरे को पता चला कि बहुत लोग मतलब वीडियोस देखते हैं, लाइक जिन लोगों ने एजेड लिया हुआ है, और वो वीडियोस देख के अपना कर लिए, उस टाइम पे क्वेश्चन कर लिए, उनको बन गया, एंड फिर वो बहुत टाइम बाद वापस आए, अब उनको वापस वीडियोस ही देखना पड़ रहा है। तो हम्म। वो चीज वो लगता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो मतलब ये सजेशन रहेगा कि अगर आप लाइक एजेड से पढ़ रहे हो तो प्रॉपरली नोट्स बनाओ, खुद के लिखे हुए नोट्स बनाओ, रादर हम्म। देन या तो पीडीएफ डॉक मत रखो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है, और वो पता रहता है कि हाँ क्या था कैसे था, जल्दी रिकॉल हो जाता है। जैसे नॉर्मल भी अपन जेई के टाइम पे भी पढ़ते थे, तो लाइक एक हाँ। बार मतलब अपना नोट्स धीरे धीरे याद ही होता है, मैं मल्टीपल रिवीजन होते होते फिर अपना नोट्स ऐसे लगता है कि हाँ ये तो देखा हुआ, ये तो याद है, हाँ। ये याद है, पूरा टेक्निक एक बार से हाँ प्लीज काइंड देख ऑफ के याद लाइक, है पूरा। वो काइंड ऑफ वो जेई वाला चीज ही है, सिमिलर टू। बट राइट। वही है कि थोड़ा करोगे तो फिर आ जाएगा मेन, प्रैक्टिस भी एक है। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, आई थिंक दिस वाज अ फेयरली गुड ग्रोथ जर्नी, तो लाइक बाय द टाइम यू वर सिटिंग इन कैंपस तो 1900 हो गया था एसेंशियली। हाँ। ठीक है। चलो फिर आई थिंक नाउ वी कैन टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जो अभी लाइक 1400 जस्ट पहुंचे, या 14 लाइक स्पेशलिस्ट पहुंच रहे हैं, राइट? आई मीन 1300 1400 रेंज पे, राइट? सो दे वांट टू हम्म। ग्रो, उनको एक्सपर्ट बनना है, राइट? बिकॉज एक्सपर्ट इज अ वेरी हम्म। मार्क, मेरे को ऐसा लगता है, जो तुमने सेकंड ईयर के एंड हाँ। में कर लिया था एसेंशियली। हाँ। तो हम्म। उनके लिए लाइक इफ यू हैव टू गिव सम टिप्स कि क्या कर सकते हैं वो लोग ग्रो करने के लिए। हम्म। तो लाइक मैं मतलब जो मैंने ऑब्जर्व करा था पूरी जर्नी के टाइम पे, तो इनिशियल डेज में जैसे मेरे से प्यूपल में जब मैं पहुंचा, और वहां से जब मेरे को एक्सपर्ट तक मूव करना, मतलब स्पेशलिस्ट तक मूव करना था, तो मेजरली जो टॉपिक्स मेरे को लगे थे कि मेरे को अच्छे से आने चाहिए, लाइक प्रीफिक्स सम, बिट मैनिपुलेशन, टू पॉइंटर, बाइनरी सर्च, लाइक इफ समवन फोकस ऑन दीज टॉपिक्स वो इजीली अपने आप को पुश कर सकते हैं, बिकॉज आप ए एंड बी क्वेश्चंस बना लोगे इजीली, एंड समटाइम्स वो सी वाले क्वेश्चंस भी उसी के ऊपर रहते थे जब मैं मतलब ट्राई कर रहा था रेटिंग पुश करने का। तो इजीली आप जल्दी से प्यूपल से आप रीच कर सकते हो। प्यूपल रीच करने के लिए आपको बेसिक मैथ्स और बेसिक नॉलेज होगा अगर सी प्लस प्लस का, तो आप कर लोगे एसटीएल का। बट यहाँ बस अगर आपको प्यूपल से ऊपर जाना है तो ये टॉपिक्स कवर करोगे तो इनफ है। एंड देन देयर इज अ मेन पार्ट कि आप जब आप स्पेशलिस्ट से जा रहे होते हैं एक्सपर्ट की तरफ, जो आपको मतलब मेन चंक्स लगता है, तो एक चीज मतलब फेथ रखना कि आप जितना जल्दी प्यूपल से एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट आए हो, उतना जल्दी मे भी आप एक्सपर्ट मतलब चलते हैं स्पेशलिस्ट आए हो तो स्पेशलिस्ट से एक्सपर्ट ना जा पाओ, बिकॉज वो एक सडन चीज चल रही होती है, वो स्टेगनेंट हो जाता है कि आपको फिर अब और आगे का पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्राफ, डीपी एंड सेगमेंट्री एंड अदर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स वो सब भी कवर करने पड़ेंगे, हम्म। बिकॉज अब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो आपको वो चीज कवर करनी पड़ेगी। तो जब मैंने ये सब चीज पढ़ ली, लाइक ग्राफ और डीपी पढ़ लिया था, जो ये मेन सबसे बड़े दो टॉपिक्स होते हैं, तो इसके बाद फिर मेरे को ये दिखने लगा कि हाँ कंसिस्टेंटली सी वाला तक प्रॉब्लम बन रहा है, एंड फिर धीरे धीरे करके मेरी रेटिंग एक्सपर्ट क्रॉस हो गई थी। तो वो 1600 तक का लिमिट के लिए आपको मिनिमम डीपीएन ग्राफ वाली चीजें पढ़ के रखनी होगी। एंड रही बात ग्रीडी की, तो ग्रीडी इज जस्ट बेस्ड अपॉन योर इंट्यूशन एंड प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस इनफ करी हुई है और आपकी इंट्यूशन डेवलप हो चुकी है, तो ग्रीडी उसी की वजह से वर्क करेगा। एंड हम्म। ट्राई टू सॉल्व फॉर स्मॉल टेस्ट केसेस, लाइक कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ग्रीडीली अप्रोच लग रही है, तो रादर देन एक पूरा एन कंसीडर करने की जगह 4 या 5 नंबर के हिसाब से क्या सॉल्यूशन बन सकता है वैसे बिल्डअप करने का ट्राई करो, तो जल्दी आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो ये एक टिप मतलब दे सकता हूँ। हम्म। तो एक्सपर्ट तक की जर्नी तो मतलब अराउंड इसी में रही। एंड सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट जो था एक्सपर्ट से कैंडिडेट मास्टर तक का था, हम्म। जिसमें पूरा रोलर कोस्टर जैसा वर्क कर रहा था, कि आप बस मतलब आप पहुंचने वाले हो 1890s तक आ चुके हो, एंड देन आपकी रेटिंग गिर जाती है, फिर आप ट्राई कर रहे होते हो, फिर आप जस्ट क्रॉस कर जाते हो। तो वो हम्म। पूरी जर्नी में मतलब जो मेरे को फील हुआ इज लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, तभी आपके थिंकिंग पॉइंट उस अराउंड चलेगा। कोई नया कॉन्टेस्ट आया, कोई एक जगह फेल हो, रुको 2 मिनट सोचो क्या हुआ है, कैसे हो सकता है। अगर कॉन्टेस्ट के टाइम पे नहीं बना, दोबारा करो, एक बार अपसॉल्व करो, अपसॉल्व के बाद एडिटोरियल एक बार पढ़ो, दूसरी अप्रोचेस दे दो, मतलब लाइक जो आपके टॉप हंड्रेड्स होते हैं उसमें अगर आप किसी को जानते हो कि आप फॉलो कर रहे हो, उनके सॉल्यूशन देखो उनने कैसे किया है, यूट्यूब में सॉल्यूशन देखो। एंड नाउ डेज की सीएफ में वीडियो एडिटोरियल भी आ गए हैं, हम्म। तो वो इज अ दैट इज अ प्लस पॉइंट कि लाइक अब तो मतलब वीडियो एडिटोरियल भी, अब तो सब कुछ आपको दिया जा रहा है, रादर देन आपको जो टेक्स्ट पढ़ के पूरा समझना पड़ता था, अब एक इंसान आपको पूरा समझा रहा है। तो वो भी एक चीज है, तो अब वो चीज थोड़ी मुश्किल नहीं रहेगी, बट एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ये अज्यूम कर लो कि मैंने एजेड कर लिया और इससे मेरा हो जाएगा, तो वो चीज उतनी नहीं है। एजेड आपको वो एक बेस दे देगा जिससे आप सब कर सकते हो, लेकिन वो सब करने के लिए आपको पहले ट्राई भी करना पड़ेगा।
आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा, वरना आपसे वो एजेड के क्वेश्चन तो बना रहे हो लेकिन बाहर की चीजें आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बस वो याद कर लिया है, वो सीखे नहीं हो जो मेन चीज सीखना चाहते थे उसमें, या सिखाया गया था। तो वो एक चीज है एक्सपर्ट से सीएम तक जाने का। ट्रू दैट, मतलब बिकॉज वो ये कि वो एप्लीकेशन वाला आइडिया कि नया क्वेश्चन में जो लगाना है, मतलब लाइक टेक्निक्स तो सारे पता चल गए, जितने सारे स्टैंडर्ड हाँ। आइडिया थे वो सब बेसिक में कवर हो गया। जितने भी तुम फ्रेमवर्क, जितने भी एप्लीकेशन आइडियाज हो सकते हैं, बट देन हम्म। अब नए क्वेश्चन में मैं लगाऊं कैसे, मेरे जो ब्रेन कनेक्ट कैसे होंगी उस क्वेश्चन में, कैसे इसको लगाना है, वो सब चीजें जो रहेंगी वो जब तक डेवलप नहीं हो तब तक तो लाइक हाँ, तो वी आर मतलब रेडी। वही सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ताकि पता चले कि कहाँ पे कैसे अप्रोच लगानी होती है। तो वो हम्म। एक इंपॉर्टेंट चीज है, और न्यू चीजें भी तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको पता चलेगा ओके, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि आई गेस बाइनरी सर्च टू पॉइंटर लगना चाहिए था, एंड देन यू फाइंड कि नहीं, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, ग्रीडी का ये अप्रोच से हो जाता है कि आप कुछ बहुत तगड़ा सोच रहे हो कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आप सोचते हो कि चलो सेगमेंट ट्री लगा देते हैं बस काम हो जाएगा, लेकिन और वो चीज की जगह एक सिंपल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो जब तक वो जानोगे नहीं तब तक आप सोच नहीं पाओगे उस डायरेक्शन में। तो वो एक चीज है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। चलो यार, लाइक लेट्स टॉक अबाउट वन क्वेश्चन दैट आई आस्क एवरीबॉडी आई कॉल अपॉन, कि यार एक रिसोर्स दैट यू फील इज लेसर नोन इन सीपी वर्ल्ड, बट देन लाइक इज वेरी गुड एंड देन एवरीबॉडी शुड लाइक डेफिनेटली यूज इट, मतलब जो लोग कम यूज करते हैं बट देन करना चाहिए लोगों को वो। हम्म। तो एक सिंगल रिसोर्स कोई भी चीज का नहीं होता है, मतलब अगर वो होता तो वो सबको पता होता है, तो ये चीज नहीं है कि हर एक टॉपिक के लिए मतलब एक सिंगल रिसोर्स में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बट टॉपिक बाय टॉपिक काफी रिसोर्सेज है जो मैं मतलब पॉइंट आउट करना चाहूंगा। लाइक इफ यू आर एमिंग टू सॉल्व लाइक प्रैक्टिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो CSES प्लस एड कोडेड एड्यू वाला जो था डीपी कॉन्टेस्ट, वेल इनफ, पूरा है, कंप्लीट है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे। हर एक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन से लेके आपका नॉर्मल सेगमेंट ट्री, इन आउट डीपी, हर चीज मिल जाएगी उसमें, आपका डीपी बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। देन मूविंग टूवर्ड्स ग्राफ थ्री, अगेन CSES आप कर लोगे, और इससे मतलब लाइक एजेड और CSES काफी है, बहुत काफी है, उसमें सारे वेरिएंट्स हैं। और बाकी कोड कोर्सेज के अगर आप रेटिंग वाइज सॉर्ट कर लोगे तो भी आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे कोर्स, मतलब पॉइंट। 1600 एंड के देर इज, आसपास अगर देखोगे तो बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, तो बहुत सारे अच्छे मिल जाते हैं। एंड देयर इज अ एडू सेक्शन इन कोड फोर्सेस जहाँ पे एक पायलट कोर्स करके है, तो हम्म। वहां पे आपको बाइनरी सर्च, टू पॉइंटर, सेगमेंट्री, उनके भी मतलब काफी अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रॉपर फॉर्मुलेटेड कि हाँ लेवल बाय लेवल, लाइक पूरी डिफिकल्टी के हिसाब से सॉर्टेड है। तो आप ये तीन चीजें मतलब कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको कोई नई चीज पढ़नी है, जो मैंने मतलब प्रेफर किया था, मैंने काफी लेट मेरे को मिला था, और आई गेस बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, USCO करके एक वेबसाइट है, यूसाको करके, देखो तो वर्सल गाइड जो प्रॉप- है। हाँ, तो वहां पे सारे के सारे मतलब लेवल लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एडवांस, वैसे करके पूरे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनके लिए क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आपको मतलब लग रहा है कि मेरे को कुछ नया टॉपिक खुद से भी सीखना और मेरे को थोड़ा सा और एडवांस की तरफ जाना है चीजें, तो वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो बहुत ज्यादा लोग नहीं मतलब यूज करते थे, मतलब मेरे टाइम पे जब मैंने देखा था। अभी का आई डोंट नो कि कितना फेमस हो चुका है वो, बट मेरे को जब मिला था तब मेरे को लगा था कि इट्स अ जेम, कि यहाँ पे आपको हर चीज एक साथ मिल चुकी है, जहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, और एक आपको लिंक भी मिल जाएगा प्रॉब्लम्स का जो प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay. एंड स्टार्टिंग फेज है अगर आपको, एंड यू आर इन लाइक प्यूपल और स्पेशलिस्ट, तो मैं बोलूंगा A to OJ लैडर करना इज अ मस्ट, कि लाइक अगर आप 1200 to 1400 की रेंज में हो और आप चारों पुश करना, तो A to OJ में अपनी रेटिंग के +200 वाले क्वेश्चन बनाओ, वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज रादर देन अभी के जो कॉन्टेस्ट है उनको आप सॉल्व करना, इससे अच्छा है बेटर जो पुराने वाले कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट है जो प्रॉपरली DSA के ऊपर बेस्ड थे। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको आपकी जो बेस लाइन, आप जो आइडियाज टेक्निक सीख रहे होते हो उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव करवा देते हैं, कि उसकी हम्म। प्रैक्टिस बहुत हो जाती है। फिर उसके बाद अभी के में जो कोई, तो आप लाइक ग्रीडी, एडॉक, एंड लाइक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सबका मिक्स मिलता है, इट्स हम्म। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें अगर हम इस पे सीधा जंप कर जाए तो मे भी आपको मुश्किल लगे, एंड आपको लगे कि मैंने सीख तो लिया बट हो नहीं रहा है, बिकॉज आप कर जिस चीज को रहे हो वो अब थोड़ी सी बदल गए, बिकॉज लोग भी अब सीख रहे हैं तो वो मुश्किल भी बनाते हैं उसको। हाँ, तो वो राइट। है, तो वैसी चीज है एक। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट्स वन गुड, सो मैं इन सारे का लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, फाइनल टिप फॉर somebody who is going to sit for intern placement यार, आई मीन like somebody is watching this and they understood your journey, उनको भी like अच्छा HFT में intern वगैरह लेना है, placement लेना है, so what would be a final tip for them? तो प्रैक्टिस हार्ड, बिल्कुल मतलब रुकना नहीं। तो सबसे ज्यादा एक चीज रहती है जो है लक, मतलब आप जो कर लो एक लक होता है, आपको कहीं से भी कहीं पे भी रखवा सकता है, आप कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो ट्राई करो कि आप इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रिपेयर रहो, लाइक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज दे चुके हैं, कोडिंग टेस्ट मतलब आप सॉल्व कर चुके हैं, कुछ PYQs, या फिर कहीं मतलब या AZ में भी पड़े हुए हैं कोडिंग टेस्ट, सारे तो आप उस आपने एक्सेसिबल वो, है ही सारे लोगों के लिए, यस।
तो वो आपने वो सॉल्व कर लिए हैं, आपने सीपी की प्रैक्टिस कर ली, कोर सीएस के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जब आप एकदम इस सबको एकदम कवर करके रख लो कि भाई मेरे पास पूरी किस्मत का कोई चांस ही ना बने, मैं 80% अपनी मेहनत और 20% किस्मत के भरोसे छोड़ने टाइप, तो आप अगर पूरा 100% उसको खींच लो, तो फिर कुछ भी मतलब नहीं रोक सकता आपको। फिर सामने से आपको बोलेगा इंटरव्यूअर कि चल आ जा तुम कंपनी में, तू है अंदर। हर क्वेश्चन अगर वो आप एक चीज आंसर ऐसी है। करते तो वो रिजेक्ट करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है ना, वही बात है। हाँ, और तो उसका उस प्रिपरेशन, अपने आप को इतना वेल बना दो। मेरे ख्याल से लोग सोचते हैं कि ऐसा प्रिपरेशन इम्पॉसिबल है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। मतलब अगर कोई चाहे तो इस लेवल का प्रिपरेशन किया जा सकता है कि हर क्वेश्चन ही आंसर हो जाए ऑलमोस्ट। हाँ मतलब आप अगर एचएफटी और क्वांट की तरफ जा रहे हो, वेल नोन वेबसाइट्स है पजल्स की, आपको पता है कि ये 3 वेबसाइट से अगर मैं कर लूँ, ब्रेनस्टेलर, 50 चैलेंजिंग, या फिर पजल क्वांट करके भी एक है, वो सब उन सब में मतलब क्वेश्चन है, आपके पास सब कुछ है, एक रिसोर्सेज है, नेट पे सब अवेलेबल है। बस आपको वही है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ग्राइंड करते रहना पड़ेगा। लाइक बस 2 महीने का ग्राइंड है यार, कर लो। 2 महीने का ग्राइंड है, then उसका जो पे ऑफ आएगा ना, वो फील दिलवाएगा, वो सबसे एपिक और सबसे बढ़िया फील होता है। मेक सेंस। तो वो उसके एक बाद चीज है। पार्टीज होती है एसेंशियली। फिर उसके बाद, उसके बाद पार्टीज वगैरह होती है मस्त आराम से। हाँ फिर पार्टी, बिकॉज फन भी इम्पोर्टेंट है। लग लाइफ में पूरा टाइम काम से ना करना है आपको, आपका हाँ। काम करना है, मोटिव की लाइफ एंजॉय करना है। तो ये बस 2 महीने ऐसे मान के चलो कि बस ये 2 महीने कभी आए नहीं। अगर ये 2 महीने आप भूल जाओगे, बहुत अच्छे से काम कर लोगे, तो फिर आप देखना अगले लाइफ के 20 साल क्या बढ़िया कंपनी और बड़ी बढ़िया लाइफ बनेगी। तो मेरे को लगता है कि ऐसा करण होता है, क्या होना करण चाहिए। अभी अभी बढ़िया गाड़ी वगैरह खरीदने का सोच रहा है क्या? इंटर्न स्टाइपेंड वाइपेंड तो आ ही नहीं नहीं नहीं, गया अब मतलब तो। आ तो गया है, बस मतलब नहीं वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, तो सो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ एक वो रहता है कि आपको कंप्लीटली मतलब आइडिया पड़ जाता है कि हाँ यार मैंने मेहनत कर ली है, तो मेरे को उसके लिए अच्छा मिल चुका है। हम्म। और बार बार फिर आपको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो राइट। अगर आई आप थिंक एक बार बहुत लोग ये होशियार बनो। अप्रिशिएट नहीं करते कि यार ये चीज, मतलब ये जो लेवल अप करने वाला चीज है ना, ये भी मतलब एक बार ही मतलब रिवीजन करना पड़ता है, बट देन एक बार का ही मेहनत है। अभी नहीं करोगे तो फिर से जब स्विच हाँ करने जाओगे तब भी लगेगा कि यार यार फिर से पढ़ा नहीं था, तब अब स्विच कैसे होगा, फिर से वही सेम रहता है, सेम कहानी रहती है लोगों की। तो कभी ना कभी तो एक बार ये करना ही है एसेंशियली, ये पूरा पूरा प्रेप एंड टू एंड अगर अच्छा बना है तो। इससे अच्छा कॉलेज में ही कर लो, कॉलेज इतना टाइम कभी मिलेगा भी नहीं एसेंशियली वापस, और मेरे हिसाब हाँ, से तो। मतलब बेस्ट टाइम अभी ही है, मेरे को जो लगता है कि कर लो, मतलब सेमेस्टर चलता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे, आते रहेंगे असाइनमेंट, सब चीज है, लेकिन ये कर लो एक बार। एक बार कर लोगे तो फिर हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा नहीं टाइम देना पड़ेगा चीजों को, फिर अपने हिसाब से चीजें कंट्रोल कर सकते हो। और पैनिक बेस्ट थिंग, और एक और चीज है, पैनिक मत करना, कभी भी पैनिक मत करना। अगर लग रहा है कि भाई ये कोई XYZ पर्सन में से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या हम्म। फिर इंटरव्यू का टाइम आया है, पता नहीं कैसा होने वाला है, बस हम्म। बिंदास होके जाओ। बस सोचो कि यार नहीं होगा, अगले वाले में चले जाऊंगा, नहीं होगा उसके अगले में चले जाऊंगा, लाइफ तो चल रही है ना। और हम्म। जब जिस पॉइंट पे ये सोच लोगे, उस वो इंटरव्यू एकदम सॉलिड निकलेगा आपका, कि हम्म। लगेगा बस, क्योंकि आप चिल हो चुके हो। तो अपना हम्म। माइंड कूल रखते हुए बढ़िया से प्रेप करोगे, तो फिर कभी कोई लोड नहीं आने वाला। हम्म। एंड ठीक है, अगर बहुत लोग जैसे कभी कभी होता है कि थोड़ा लग के वजह से खराब हो गया तो इंटर्न के बाद फिर प्लेसमेंट फिर से आपके पास ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वापस प्लेसमेंट भी एक सेकेंड और। ऑप्शन लाइफ का एक और चांस मिल गया, वही। तो वो चीज हमेशा रहेगी। ट्रू।